Okay, so today we will discuss about mesh terms. Mesh is the medical subject heading on you can say NCBI. So it had different links to tutorials, utilities. If you open utilities, you will end up on this page. Here, there are links to the different utilities. As you can see on the page, how to search a database, how to store the search results, and so on. So if you want to get benefit from this, you can always come to this particular page. Then there's tutorials, and this is the page for tutorials. There are different you can say video tutorials available. For example, I just opened the first one, the find the latest treatment for a disease. If you want to see that in the literature, and what is the latest treatment for a disease or disorder, you can just how to search that. So then there is a link to this. You can say video. Find the latest treatment for a disease or disorder. So if I just begin my tutorial. To find articles about treating a disease or disorder, select Clinical Queries from the PubMed homepage. Enter your disease terms in the search box and click Search. Let's find articles about treating uterine fibroids. Enter uterine fibroids and click Search. Search results are displayed in two areas: COVID-19 articles and clinical study categories. The first 5 retrieved records are displayed for each section. We are looking at the clinical study categories for this example. Under the category menu are options to find research on therapy, clinical prediction guides, diagnosis, etiology, and prognosis for diseases and disorders. Each filter adds appropriate terms to your search to more easily find relevant literature. We're interested in treatment information, so we'll leave the default option of therapy. To retrieve fewer, more highly relevant results, use the narrow option under Scope. To retrieve your full results in PubMed, click See All at the bottom of the preview of results. ओके तो ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था. इसके अलावा और भी ट्यूटोरियल्स वी हैव अदर ट्यूटोरियल्स एज वेल like PubMed subject search, how PubMed works, and using PubMed in advanced evidence-based practice. So you can see, you can find all kind of resources according which shows your needs. Then there is a you can say term which is called which we call as mesh browser mesh terms. So if we just this is the medical subject heading in the home page, and you can see there are different terms and subterms available. But let me just directly go to some of the things that I searched previously, like here. Okay, just let me search. For example, lungs disease. I type lung diseases. So it has given me this you can say information to narrow down my search, but I will just switch to the tree view here. So you can see in tree view there is anatomy related to this topic, organisms, diseases, chemicals and drugs, and many other things. So I will just open this. You can say menu here. You can say there are many further diseases or so. Just open this. So
you can similarly you can just keep opening that until you find the your results. So let's see, I say heart diseases. So I got the result for heart diseases. You can see here is the preliminary information. It has a unique identifier, qualifiers, and mesh tree structure. So this is the mesh tree structure here. So you can see in the under the hierarchy of heart diseases, you can find the list of all diseases you have in PubMed, and these are the specialized term, by the way, that each of them is a separate category. So if we just erythematosus cardiac, if we just open its hierarchy, you will find further you can say subcategories into this particular disease or disorder. So there is a myocardial infarction, myocardial ischemia. So there, so you can see there is hierarchy within hierarchies, and ultimately you will end up with a specific disease or disorder. So those of you who are working towards your final year projects, if you want to see how different terms branch out and how what are the detailed subterms of a particular topic, you can always come to the mesh terms and search them and view them in you can say um, tree view, so that you can know what kind of topics you can cover. So basically आप में से जो लोग भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वो सब टर्म्स और टर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. Let me do some other searches as well, like machine learning. I guess there should be. I never know whether it's medical. So machine learning is in the mesh terms. और इसकी अगर हम प्लीज डिस्क्रिप्शन बात करें तो इसमें डीप लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, और सुपरवाइज लर्निंग में भी फर्दर इसमें कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की हुई है. इससे मशीन लर्निंग में यहाँ पे भी वही है. और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी वो बिगर जो ट्री है उसको भी दिखा रहा है कि एआई के अंडर ये आता है, जिसमें कंप्यूटर हेरिस्टिक, एक्सपर्ट सिस्टम, फजी लॉजिक, नॉलेज बेस्ड मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स और रोबोटिक्स आता है. न्यूरल नेटवर्क्स की अगर हम इसको सब क्लासिफिकेशन को देखें तो उसमें डीप लर्निंग शामिल है. सो आप इसमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं जो मतलब आपके रेलेवेंट है यहाँ पे, और इसकी सब टर्म्स दे सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने मजीद कवर करने हैं. खास तौर पे जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो यू डोंट वांट टू मिस आउट द रेलिवेंट लिटरेचर. समटाइम्स आपकी टर्म बहुत जेनेरिक होती है, जनरल होती है, तो अगर आप उसको फिक्स करना चाहते हैं, नैरो डाउन करना चाहते हैं, तो मैश टर्म्स कैन बी वेरी हैंडी एज वेल. Like आई डिसऑर्डर्स या डिजीजेस. सो मैश टर्म में किया तो आपके पास ये सारी आ गई. ठीक है. सो these are different ways to search. ये सिर्फ टर्म्स देते हैं. इंपॉर्टेंट बात ये कि these only give you terms. इन टर्म्स को आप देखकर अपनी सर्च को, अपने मेथोडोलॉजी को और अपने जो टॉपिक को उसको नैरो डाउन कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक टास्क पे कर सकते हैं, बजाय इसके कि बहुत वाइडर एरिया पे आप इसको सर्च करें. सो यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल या क्यूरी? एनीवन? सर एक बार ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें हमारा. रिव्यू ऑफ लिटरेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं? मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब वो एक बड़ा वाइडर टॉपिक है. मुझे जरा आप नहीं सर, अगर हम लोग किसी मतलब अगर सर हम लोग किसी पेपर का करना चाह रहे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या देखना चाहेंगे? मतलब मुझे सर आइडिया नहीं है कि हम लोग अगर हम लोगों ने टॉपिक लिया हुआ सपोज प्रोजेक्ट में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो हम लोग उसमें बेसिकली क्या क्या चेक करेंगे कि हम लोगों ने ये काम करना है, ये पूछना चाह रही थी. अच्छा, लिटरेचर रिव्यू मैं क्या, मैं आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में तो है नहीं है, पहली बात तो ये है.
इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट टेक्निकली। दूसरी बात ये कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आपने करना भी है, यानी लिटरेचर को रिव्यू करना मतलब उससे गो थ्रू होना, तो पहली बात है कि आपको कोई कोई एक एरिया पता होना चाहिए। मसलन मैं कहता हूँ मशीन लर्निंग फॉर हार्ट डिजीजेज, ठीक है। अब इस पे मैं जाके पबमेड पे सर्च करता हूँ, मेरे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, मैं रेलिवेंट पेपर्स को पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब रेलिवेंट पेपर से मुराद है कि उसमें शायद हज़ारों के हिसाब से रिजल्ट्स आए, लेकिन ऑल ऑफ देम आर नॉट रेलिवेंट। So only few papers, maybe 10, 20, 30 papers are more relevant to my context. I will just read those papers. अब यहाँ पे उसको उसको सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हर पेपर की 1 पेज समरी लिखें। 1 पेज समरी में आप क्या लिखेंगे कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको उस पेपर में डिस्कस किया गया या एड्रेस किया गया, यानी उस पेपर के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड और टारगेटेड इन दिस पेपर, और फिर what was the methodology adopted to achieve those objective, ठीक है, कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। थर्ड वन इज द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में आपने सारे रिजल्ट्स रिपोर्ट नहीं करने, आपने जस्ट उनकी फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं। ओके दे हैव डन दिस वर्क, और उनका रिजल्ट जो है कंपैरेटिवली बेहतर था उनके ऊपर। मतलब ये आपकी एनालिसिस नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट उनको ही रिपोर्ट करना कि दे थिंक दैट देयर रिजल्ट वाज बेटर देन प्रीवियस स्टडीज या व्हाटएवर जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है। सो अगर आप ये एक पेज की समरी लिख लेते हैं, तो दिस इज योर रिव्यू ऑफ 1 पेपर, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे और उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, क्योंकि इन दी एंड जब आप रिसर्च में के लिए अपने लिए गैप तलाश कर रहे होंगे कि किस इस एरिया में मैं क्या मजीद काम करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव हो चुके हैं और उनके लिए क्या क्या मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट की जा चुकी हैं, तो आप सो दैट आप डिफरेंट जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर सकें, डिजाइन कर सकें, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। जी सर, इसका मतलब ये है कि फिर हम लोगों ने अगर किसी भी टॉपिक का लिखना है, रिव्यू करना है, तो हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी पेपर हैं उसको समराइज करेंगे। मतलब डिफरेंट मेथोडोलॉजी का डिफरेंट पेपर्स में है, तो हम लोग जो अपने वाला काम करेंगे उसमें हम लोग सारा समराइज करेंगे। डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता आपका टॉपिक क्या है, क्योंकि थीसिस के लिए आपके प्रोजेक्ट के लिए एज ए सेट व्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने जस्ट इंट्रोडक्शन लिखना है और आगे रिजल्ट्स लिखने हैं, मेथोडोलॉजी के रिजल्ट्स लिखने हैं, लेकिन थीसिस में, एमफिल के थीसिस में ये लाजमी पार्ट होता है। हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको समराइज करें और मेथोडोलॉजी उसमें देखेंगे कौन सी मेथोडोलॉजी उसने अडॉप्ट की है उस, तो इट्स ऑब्वियस। थैंक यू सो मच सर, ठीक है। ओके जी, एनीबॉडी एल्स? तो अगर आप के पास कोई मजीद सवाल नहीं है तो आई विल लीव यू टू प्रैक्टिस दिस। आप इस पे जाएं, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखें। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैश टर्म्स को पहले आप देखें, जो भी आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड मैश टर्म्स, इसमें जो है वो ट्राई टू फाइंड दोस मैश टर्म्स और उनकी हायरार्की,